فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ تلنگانہ کے چیف منسٹر کے چندرشیکھر راؤ نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ سوٹ کیس کے ساتھ انتخابی میدان میں اترنے والے کانگریس امیدواروں سے چوکن نہ رہیں۔ مذاق میں ووٹ دیا گیا تو زندگی تماشا بن جائے گی، عوام کا مستقبل غیر یقینی صورتحال سے دوچار ہو جائے گا۔ چیف منسٹر KCR نے 3 اسمبلی حلقوں چنور، منتھنی اور پیداپلی میں BRS جلسوں سے خطاب میں کہا کہ گزشتہ 100 سال میں BRS کے 10 سالہ حکومت میں ہی تلنگانہ میں امن و امان اور سکون رہا ہے، نہ کوئی فسادات ہوئے، نہ کوئی کرفیو کیا گیا۔ کانگریس حکومت میں فرقہ وارانہ فسادات ہوا کرتے تھے، انہوں نے بحیثیت چیف منسٹر غنڈہ گردی کو ختم کر دیا، لا اینڈ آرڈر پر توجہ دی، جس سے ریاست میں جہاں ترقی ہوئی وہیں روزگار کے مواقع فراہم ہوئے۔ تلنگانہ کو فلاحی اسکیمات کی جنت میں تبدیل کر دیا گیا، عوام کو 24 گھنٹے برقی سربراہ کی گئی، زرعی انقلاب برپا کیا گیا، ہر ضلع میں میڈیکل کالج قائم کیا جا رہا ہے، اضلاع کی تنظیم جدید کر کے 10 اضلاع کو 33 اضلاع میں تقسیم کیا گیا، جس سے سرکاری نظم و نسق عوام کی دہلیز تک پہنچ گیا ہے۔ عوام غور کریں، انہیں 24 گھنٹے برقی چاہیے یا 3 گھنٹے؟ 24 گھنٹے برقی کے لیے BRS اور 3 گھنٹے برقی کے لیے کانگریس کو ووٹ دیں۔ انتخابات میں کانگریس قائدین نوٹوں کے سوٹ کیس کے ساتھ میدان میں اتر رہے ہیں۔ چند ہزار روپیوں کی لالچ میں تلنگانہ کے عوام اپنے 5 سال کا مستقبل خراب نہ کرے۔ BRS کے ارکان اسمبلی ہمیشہ عوام کے درمیان میں رہیں گے، عوام بلا جھجک مسائل کی یکسوئی کے لیے ان سے رجوع ہو سکتے ہیں۔ اگر سوٹ کیس سے عوام کے درمیان پہنچنے والے قائدین پر بھروسہ کیا گیا تو وہ انتخابات کے بعد عوام کو کبھی دستیاب نہیں رہیں گے۔ گولمال کانگریس پر بھروسہ کیا گیا تو زندگی گولمال ہو جائے گی۔ علیحدہ تلنگانہ حاصل کرنے والی BRS نے 10 سال میں ریاست کی ترقی اور بہبود کے لیے جو کام کیا ہے اس کی ملک بھر میں کہیں بھی نظیر نہیں ملتی۔ کانگریس کو ووٹ نہ دیں بلکہ ان کی ضمانت ضبط کرتے ہوئے BRS امیدواروں کو کامیاب بنائیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی تلنگانہ کے دورے پر پہنچ گئے ہیں، جھوٹے وعدے کر کے عوام کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ گزشتہ 10 سال میں مودی نے تقسیم آندھرا پردیش کے وعدوں پر عمل نہیں کیا، فنڈز کی اجرائی، اسکیمات کی فراہمی، تعلیمی اداروں کے مختص کرنے میں مرکزی حکومت نے تلنگانہ سے سراسر ناانصافی کی ہے۔ ایسی کانگریس اور BJP کی تلنگانہ کو ضرورت نہیں ہے۔ ریاست میں تیسری مرتبہ BRS بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کرے گی، جس کے بعد عوام کو کئی راحتیں دی جائیں گی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے دہلی شراب پالیسی معاملے میں BRS کے ملوث ہونے کا انکشاف کیا ہے۔ حیدرآباد کے LB اسٹیڈیم میں BJP کے جلسے عام سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم مودی نے کہا کہ BRS حکومت کئی بدعنوانیوں میں ملوث ہیں۔ BRS کی بدعنوانی کے تار دہلی شراب پالیسی معاملے سے بھی جڑے ہوئے ہیں۔ انہوں نے انتباہ دیا کہ بدعنوانیوں میں ملوث کسی بھی شخص کو بخشا نہیں جائے گا۔ الیکشن کمیشن نے تلنگانہ میں انتخابی سرگرمیوں کی نگرانی کے لیے 3 خصوصی مبصرین کا تقرر کیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے ریٹائرڈ IAS عہدیدار اجے وی نائک، ریٹائرڈ IPS عہدیدار دیپک مشرا اور ریٹائرڈ IRS عہدیدار آر بالا کرشنن کو خصوصی مبصرین کے طور پر مقرر کیا ہے، جنہوں نے کمرشل ٹیکس، ایکسائز اور دیگر محکمہ جات کے عہدیداروں کے ساتھ اجلاس منعقد کیا۔ چیف الیکٹورل آفیسر وکاس راج اور ان کی ٹیم نے خصوصی مبصرین کو انتخابی تیاریوں کی تفصیلات سے واقف کرایا۔ امن و ضبط کی صورتحال کی برقراری کے سلسلے میں خصوصی مبصرین نے ہدایت کی ہے کہ ملازمین پولیس جنہیں پولنگ اسٹیشنوں کے پاس تعینات کیا جائے وہ صورتحال پر گہری نظر رکھیں۔ پولنگ اسٹیشنوں پر مامور کردہ عہدیداروں اور ملازمین کو رہنمایانہ خطوط جاری کیے جائیں۔ مبصرین نے کہا کہ سیاسی پارٹیوں اور امیدواروں کی سرگرمیوں پر نظر رکھنے کے لیے موبائل فون سے ریکارڈنگ کے بجائے کیمرے استعمال کیے جائیں تاکہ بہتر طور پر ریکارڈنگ ہو۔ انہوں نے کہا کہ فہرست رائے دہندگان سے متعلق درخواستوں کی 10 نومبر تک یکسوئی کر لی جائے گی۔ مبصرین اضلاع کا دورہ کرتے ہوئے درخواستوں کی یکسوئی کا جائزہ لیں گے۔ CPM نے تلنگانہ چناؤ کے لیے مزید 3 حلقہ جات سے امیدواروں کا اعلان کیا ہے۔ کانگریس سے مفاہمت میں ناکامی کے بعد ریاستی سیکریٹری T ویرا بھدرم نے 14 امیدواروں کی پہلی فہرست جاری کی تھی۔ آج مزید 3 امیدواروں کا اعلان کیا۔
कोदाड़ हलके से एम साइदुलू, मनुगुडू हलके से नरसिम्हा रेड्डी और एलंदू हलके से डी कृष्णा को उम्मीदवार बनाया गया। वीराभद्रम ने कहा कि जहां सीपीएम उम्मीदवार नहीं है वहां उनकी पार्टी सीपीआई की तायद करेगी। वीराभद्रम खम्मम पालेरू हलके से मुकाबला करेंगे। सीपीएम ने जिन हलकों से उम्मीदवारों का ऐलान किया है उनमें मुशीराबाद, पटनचेरू, इब्राहिमपट्टनम, जनगांव, भोनगिर, नकरेकल, मिरियालगुड़ा, सत्तुपल्ली, खम्मम, मुधिरा, पालेरू, ईश्वरावपेट व भद्राचलम शामिल हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में बीआरएस हुकूमत के जवाल की पेश कयासी करते हुए कहा कि वो डंके की चोट पर यह बात कह रहे हैं कि बीआरएस को शिकस्त का खौफ लाहक हो चुका है। वजीर आजम ने बीजेपी की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेकर लाल बहादुर स्टेडियम में बीसी आत्मा गौरव सभा से खिताब किया। वजीर आजम ने तेलुगु में चंद अल्फाज अदा करते हुए अपनी तकरीर का आगाज किया, जिसका आवाम की जानिब से खैर मकदम किया गया। वज़ीर आज़म ने कहा कि तेलंगाना की मुक़द्दस सरजमीन को मेरा सलाम। बीसी आत्मा गौरव सभा में शिरकत के लिए मेरे लिए बाइस फ़ख्र है। उन्होंने कहा कि आपके आशीर्वाद से मैं वज़ीर आज़म के ओहदे पर फायज़ हूँ। आपके आशीर्वाद से बीजेपी बीसी तबके से ताल्लुक़ रखने वाले कायद को तेलंगाना का चीफ मिनिस्टर बनाएगी। वज़ीर आज़म ने कहा कि तेलंगाना में तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद तब्दीली चाहते हैं। पानी, वसाइल और रोज़गार के लिए अलहदा तेलंगाना की जद्दोजहद की गई। बीआरएस ने पानी, वसाइल और रोज़गार तीनों शोबे-जात में अवाम के साथ धोखा किया। गुज़िश्ता 9 बरसों में तेलंगाना में मुखालिफ बीसी, एससी, एसटी बीआरएस हुकूमत बरसर इख्तिदार रही। बीसी तबक़ात के मुतालिबात पर कभी तवज्जो नहीं दी गई। बीजेपी के इंतखाबी इम्कानात आज उस वक्त एक और धक्का लगा जब खुद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के इंतखाबी जलसे में भी अवाम की इंतहाई कम तादाद शरीक रही। वज़ीर आज़म के जलसे का बीजेपी ने एलबी स्टेडियम में इनेकाद किया था। दावा किया जा रहा था कि 1 लाख अफराद इसमें शिरकत करेंगे। ताहम इत्तलात के मुताबिक सिर्फ 15,000 के आसपास अवाम ने शिरकत की। मजीद ये कि जब वज़ीर आज़म ने तकरीर शुरू की, अवाम जलसे से रवाना होना भी शुरू हो गए। पता चला है कि वज़ीर आज़म ने अवाम की कम शिरकत पर नाराज़गी का इजहार किया। हिंदुस्तान में 500 और 1000 रुपए की बड़ी करेंसी नोट मनसूख होकर आज 7 साल मुकम्मल हो गए हैं। आज ही के दिन 8 नवंबर 2016 को नरेंद्र मोदी हुकूमत ने अचानक बड़े करेंसी नोट को मनसूख करने का ऐलान किया था। हुकूमत का दावा है कि उसने मईशत को ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तहकम बनाने में मदद की है, जबकि अपोजिशन का कहना है कि वो काले धन को रोकने और नकद पर इन्हिसार कम करने में नाकाम रही है। 7 साल कबल 8 नवंबर को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 1000 और 500 रुपए के पुराने नोटों को ख़त्म करने का ऐलान किया था और इस बेमिसाल फैसले का एक अहम मकसद डिजिटल अदायगियों को फरोग देना और काले धन को रोकने के अलावा दहशतगर्दी की फंडिंग को खत्म करना था। वाज़ेह है कि 8 नवंबर 2016 को रात 8 बजे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी का ऐलान किया था। इस ऐलान के बाद पूरे मुल्क में अफरा तफरी मच गई थी। कई महीनों तक मुल्की बाशिंदों को बैंकों की लाइन में लगकर अपने नोट तब्दील करने पड़े थे। इस दौरान खुद के पैसे निकालने के लिए भी एटीएम की तवील कतारों से गुजरना पड़ा था। इस दौरान कई लोगों की जान चली गई थी। नोटबंदी के फवायद बाद मुल्क भर से सामने आई बदहाली की तस्वीर पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए पीएम मोदी ने उस वक्त मुल्क के लोगों से सिर्फ 50 दिन का वक्त मांगा था। उन्होंने कहा था कि 50 दिन के बाद इस मसले से निजात मिल जाएगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि अगर 50 दिन के अंदर इस मसले से निजात नहीं मिली तो आप जहां चौराहे पर बुलाओगे मैं आने को तैयार हूं। लेकिन हकीकत यह है कि आज तक मसले का कोई हल नहीं निकला है। ट्रेडिशनल ग्लासेस से जान छुड़ाएं और चले आए आपकी आंखों का मुहाफिज विनायका नेत्रालया आई हॉस्पिटल, जहां हाईली एक्सपर्ट सीनियर कैटरैक्ट एंड रेटिनल सर्जन डॉक्टर उदया श्री जी की निगरानी में आपकी आंखों को नई जिंदगी दी जाती है। एडवांस टेक्नोलॉजी के जरिए आपकी आंखों का चेकअप और ट्रीटमेंट किया जाता है। ऑप्टिकल्स की सर्विसेज भी हमारे पास मौजूद है। विनायका नेत्रालया आई हॉस्पिटल, 15 मेनन स्क्वायर, ऑपोजिट ऑलिव हॉस्पिटल, नानाल नगर, हैदराबाद। सही वक्त पर सही केयर करना किसी भी बीमारी का बेहतरीन इलाज साबित हो सकता है। डॉक्टर सुनील पीडियाट्रिक क्लिनिक, आपके बच्चों की सेहत हमारी जिम्मेदारी। हमारे यहाँ पेनलेस वैक्सीनेशन, कंसल्टेशन और डे केयर जैसे तमाम सर्विसेज मौजूद है। डॉक्टर सुनील पीडियाट्रिक क्लिनिक, 15 मेनन स्क्वायर, ऑपोजिट ऑलिव हॉस्पिटल, नानाल नगर, हैदराबाद। मुल्क की शुमाल मशरकी रियासत मणिपुर में मई के महीने में लगी तशद्दुद की आग बुझने का नाम नहीं ले रही है। ताज़ा तरीन वाक़े में मैती से अक्सरियत पसंदों ने फौजी के खानदान के 3 अफराद समेत 4 अफराद को अगवा कर लिया। ये वाक़या
इम्फाल मगरिबी जिले में पेश आया। इसके बाद तशद्दुद एक बार फिर फैल गया। अगवा की खबर फैलते ही मुसल्ला कोकी दहशतगर्दों ने इम्फाल वेस्ट और कोंक पोकपी अजला के साथ कॉन्चिंग इलाके में लोगों के एक ग्रुप पर फायरिंग कर दी, जिसमें 2 पुलिस एहलकारों और एक खातून समेत 7 अफराद जख्मी हो गए। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अस्करियत पसंदों की जानिब से अगवा किए गए 4 अफराद में एक 65 साल शख्स भी शामिल है। अगरचे इस बुजुर्ग को इन अस्करियत पसंदों के चुंगल से आज़ाद करा लिया गया, ताहम बाकी 4 अफराद का सुराग नहीं लगाया जा सका। इन 4 अफराद में 2 मर्द और 2 खवातीन शामिल हैं। मध्य प्रदेश असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र कांग्रेस उम्मीदवार की हिमायत में तशहीर करने ग्वालियर पहुंचे कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि ये इंतखाब उम्मीदवार या पार्टी के लिए नहीं बल्कि मुल्क के लिए है। खड़गे ने जलसे-आम से खिताब करते हुए कहा कि हमारी हुकूमत में माओ बहनों को 1500 रुपए माहाना मिलेगा, 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा, 100 यूनिट बिजली माफ और 200 यूनिट हाफ किसान का खर्च माफ, मुलाजिमीन के लिए पुरानी पेंशन बहाल होगी, किसानों को 12 घंटे आपाशी के लिए बिजली देने का भी काम हमारी हुकूमत करने वाली है। नेशनल कॉन्फ्रेंस नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि मुलाजिमीन को अपने जायज़ मुतालबात और मुश्किलात को हल करने के लिए कोई तरीक़ा होना चाहिए। अगर इंतज़ामिया कहती है कि एहतजाज पर पाबंदी है तो वो ये बताएं कि मुलाजिमीन को जायज़ मुतालबात को हल करने का क्या तरीक़ा है। उन्होंने कहा कि सर्विस कंडक्ट रूल्स हर मुलाजिम पर लागू होते हैं और कोई भी मुलाजिम सर्विस कंडक्ट रूल्स की खिलाफ वर्जी नहीं करता, और करता है तो अपने जायज़ मुतालबात मनवाने के लिए करता है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि इंतज़ामिया का किसी के साथ भी बेहतर ताल्लुकात नहीं है और सुनने में आया है कि मुलाजिमीन के साथ भी नहीं है। सरकार को चाहिए कि वो मुलाजिमीन के लीडरान के साथ तय करे कि कौन से तरीके हैं जिससे मुलाजिमीन अपने मुतालबात को मनवाने का इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी आवाज़ को हुक्मरान तक पहुँचा सकते हैं। जम्मू और कश्मीर के साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने इस पर सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि अगर डल झील, गुलमर्ग, सोनामर्ग, पहलगाम और बहुत से जगहों के माहौल बचाने के लिए तामीराती काम पर मुकम्मल पाबंदी है, ग्रीन बेल्ट में मरम्मत के काम पर भी पाबंदी है और उन इलाकों को बचाने के लिए अदालतों ने कितने फैसले भी दिए हैं। उन्होंने कहा कि पहलगाम में आज भी मरम्मत करने के लिए इजाजत नहीं मिलती है और इसके बरक्स अमरनाथ खप्पा तक पक्की सड़क बनाई जा रही है। उमर अब्दुल्ला इस सवालिया अंदाज में कहा कि अगर गुलमर्ग, पहलगाम, सोनामर्ग को बचाता है तो कहां अमरनाथ खंपा के माहौल को बचाना हमारी जिम्मेदारी नहीं है। गजा पर इसराइली हमले 1 माह से जारी हैं और फलस्तीनी महकमे सेहत के मुताबिक इन हमलों में अमवात की तादाद 10,000 से तजावुज कर गई है, जिसमें से 4,000 से जायद बच्चे हैं। वहीं इसराइल ने हमला रोकने से इनकार कर दिया है और हमास के खात्मे को यकीनी बनाने के अज़्म का इयादा किया है। इस बीच एक नई पहल ये देखने को मिल रही है कि तुर्की फिर से सरगर्म हो गया है। फलस्तीनी हुक्काम ने बताया है कि हमास के रहनुमा तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात से कबल तुर्की पहुंचे। ज़राए के मुताबिक इस मुलाकात का ताल्लुक इस्माइल हनिया के हालिया दौरे ईरान से है, जहां उन्होंने गजा की जंग के सियासी और सिक्योरिटी मुज़मिरात पर तबादला ख्याल किया था। हानिया ने 2 हफ्ते कबल एर्दोगान के साथ आखिरी बातचीत की थी और इसके बाद वो आला ईरानी हुक्काम से मुलाकातें कर चुके हैं। अब ज़राए का कहना है कि एक बार फिर इस्माइल हानिया की तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात होने जा रही है और इसके लिए इस्माइल हानिया तुर्किया पहुंच चुके हैं। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజాద్ ఖాన్ బెంగాల్ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి,
కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కానీ మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటిపోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. फोन नंबर 9573048697। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।